NEET aspirants, welcome back to our channel. So today I'll be dealing with part 2 of transport of gases in the blood. In my earlier video, we talked about oxyhemoglobin formation and the transport of oxygen. If you haven't seen the video yet, go to the link in the description box and see my earlier video. Then come back to this video. So today in this video, we'll be dealing with the transport of CO2. The CO2 which is generated as a result of aerobic respiration at the tissue sites need to be transported to the lungs so that it can be expelled out of the body, because CO2 is toxic to our body. So how it is going to be transported, in what all forms, we'll see and deal with it in this video today. Let's begin. See, the transport of CO2 will take place from the tissue to the alveolar site with the help of the blood. And there are three ways CO2 can travel, right? First, in the dissolved form, second as carb-aminohemoglobin, and third as bicarbonate. Remember, in my earlier lecture also I have explained you that hemoglobin has affinity for both CO2 and oxygen as well as carbon monoxide, and the highest affinity is for carbon monoxide, followed by CO2, followed by oxygen. But with which it will be binding with CO2 in CO2 and oxygen, that will first depend on the pressure gradient. If the pressure is equal for both CO2 and oxygen, it will definitely prefer CO2 because it has more affinity for it. But if I already have in the blood more of CO2 than oxygen, then it is left with no choice than to bind with CO2 only. And if there is more of oxygen in the blood than CO2, then it will bind with oxygen. So in the earlier lecture we saw how it is binding with oxygen to form oxyhemoglobin. Now we will see how it binds with CO2. So first let's have a quick recap of hemoglobin molecule so that I can tell you how CO2 is traveling with the help of hemoglobin. If we see, hemoglobin is a respiratory pigment. Very good. Write down what it is made up of. We have done it in our earlier video. Please write it down. It is made up of two parts, heme group and the globin units. So 4 globin chains which are protein part, 4 globin chains which are protein part, and these include 2 alpha, 2 beta. Very good. So you remember. Plus we have the prosthetic group which is the heme group, and at the center of every heme group we have Fe2 positive, to which basically oxygen binds. Now CO2 here binds with the amino group of the globin chains. Okay, so 4 globin chain, 4 amino group of the globin chain, and hence the complex formed by CO2 with hemoglobin is called carb-aminohemoglobin. Carb because CO2, amino because it is binding to the amino group of the globin chain. So transport of CO2, the first form I am dealing with is carb-aminohemoglobin. For hemoglobin I am writing HB. How much percentage of CO2 travels as carb-aminohemoglobin is something that can be asked, right? Percentage per questions aate hain. So around 20 to 25% of CO2 travels as carb-aminohemoglobin. इसको आप बॉक्स में हाईलाइट कर लीजिए, because you can be asked the percentage. कौन सी फॉर्म कितने परसेंटेज में ट्रैवल कर रही है, right? So यहाँ पर
कार्ब वर्ड आया है CO2 से, अमीनो वर्ड कहां से आया है, अमाइन ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट. So what happens is that CO2 combines with amino group of 4 globin chains of hemoglobin. कितनी globin chains थी hemoglobin में? 4, correct. 2 alpha and 2 beta. तो ये hemoglobin उनके अमाइनो ग्रुप से कंबाइन कर, अमाइनो ग्रुप ऑफ ग्लोबिन चेन्स के से कंबाइन कौन करता है, CO2 कंबाइन करता है, ठीक है. सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी हाउ मच मॉलिक्यूल ऑफ CO2? 4 CO2 मॉलिक्यूल्स. 4 CO2 मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकता है एक हीमोग्लोबिन ग्रुप. इसी तरीके से एक हीमोग्लोबिन ग्रुप कितने ऑक्सीजन कैरी कर रहा था, 4, क्योंकि 4 आयरन, 4 हीम ग्रुप, 4 आयरन. तो यहाँ पे भी 4 पॉलीपेप्टाइड, 4 ग्लोबिन चेन, 4 अमाइन ग्रुप इज देयर विद विच इट कैन बाइंड, ठीक है. सो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कितने परसेंट में, 20 to 25%. Why is the name carb amino hemoglobin? That I have explained you. CO2 combining with amino group of 4 globin chains. So one hemoglobin can carry 4 molecules of CO2. Very good. I hope आपको समझ में आया पहला फॉर्म. Okay. So second form is in the dissolved state. जैसे ऑक्सीजन भी dissolved state में जाता है, कितना परसेंट, जल्दी लिखो, कमेंट करो, देखती हूँ किस किस का सही है. I know आप सबको आता है. So very good, 3%. यहाँ पे देखते हैं dissolved states में हीमोग्लोबिन ट्रैवल करता है 7%. सो इट इज सिंपली लाइक अ सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन फॉर्म में 7% ऑफ CO2 इज ट्रैवलिंग एज इन द डिसॉल्व फॉर्म. किस में डिसॉल्व होता है, प्लाज्मा के वाटर कंपोनेंट में. और डिसॉल्व स्टेट इसलिए है कंपेयर टू ऑक्सीजन इट इज मोर 7% बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, solubility of CO2 is 20 to 25 times more than oxygen. Majorly 25 times, but we can take a range. So it is 25 times more soluble than oxygen, hence 7% travel in the dissolved state. The second form as carb amino hemoglobin मैंने आपको बताया कितना परसेंट, 20 to 25%. And the next last is as bicarbonate. So 70% of hemoglobin बेटा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रैवल करता है, 70%. तो ये परसेंटेज आपको आएंगी. अब ये कैसे बाइकार्बोनेट बनता है हम इसकी बात करेंगे. देखिए फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट. लेट्स डील विथ फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट. जैसे हमने ये देखा था कि कौन कौन सी कंडीशंस फेवर करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को या उसके डिसोसिएशन को, इसी तरीके से हम ये भी देखेंगे आज कि कौन कौन सी कंडीशन फेवर करती हैं बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन को, राइट. सो लेट्स फर्स्ट डील विद द फैक्टर्स that favors bicarbonate formation. है ना, क्या क्या होना चाहिए अगर बाइकार्बोनेट बनाना है तो भाई सबसे पहले तो CO2 का पार्शियल प्रेशर ही ज्यादा होना चाहिए, है ना. सो फर्स्ट इज हाई
partial pressure of CO2 and low partial pressure of O2. ठीक है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. अब ये चीज होगी कहां पर? टिश्यू साइट पर. एट द टिश्यू साइट द पार्शियल प्रेशर of CO2 is more and oxygen is less. So therefore this formation will occur at the tissue site. क्या होता है? आपके ब्लड के प्लाज्मा में और आरबीसी में एक एंजाइम प्रेजेंट होती है. ठीक है, हम बनाते हैं एक, सपोज दिस इज तो ये मैंने ना एक आरबीसी बना दिया और ये मेरी ब्लड वेसल हो गई. और ये आपका प्लाज्मा यहाँ पे इसके आसपास. ठीक है, एक सेल में बताते हैं. यहाँ पर पूरा हमारा ब्लड है. सो द ब्लड विच हैज गॉट प्लाज्मा आरबीसी इन इट. तो ये प्लाज्मा पोर्शन है बाहर का, अंदर क्या है? आरबीसी है. आरबीसी और प्लाज्मा में एक एंजाइम प्रेजेंट होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस. बट कार्बोनिक एनहाइड्रेस की क्वांटिटी आरबीसी में ज्यादा है, प्लाज्मा में बहुत कम है. तो टिश्यू साइट से, यहाँ पर हमारा टिश्यू है, इससे जो CO2 रिलीज होता है that enters the RBC. Okay, CO2 from tissue site enters the RBC and combines with water in the presence of the enzyme carbonic anhydrase to form H2CO3 कार्बोनिक एसिड. और ये कार्बोनिक एसिड फिर डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव में. बाइकार्बोनेट बना. किस एंजाइम ने ये रिएक्शंस करवाया? हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो प्लाज्मा में भी होती है बेटा, ये आप याद रखना. बट वहां पर क्वांटिटी इतनी कम है ना कि उधर ये रिएक्शन नहीं हो रहा है. ये रिएक्शन आरबीसी में होगा, एनहाइड्रेस. ठीक है, सो बाइकार्बोनेट बना. अब बाइकार्बोनेट आयन जो बना और H पॉजिटिव जो बना, देखिए उनका क्या होगा. सो H पॉजिटिव मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, इससे पहले वाली. दिस विल बेसिकली कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के हिस्टिडीन रेजिड्यूज से. और वो कैसे ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट के कॉन्फर्मेशन को बदलते हैं ये H पॉजिटिव आयन जब उससे रिएक्ट करता है, ताकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिलीज होने लगे. ठीक है, तो ये तो किसने ले लिया? हीमोग्लोबिन ने. बेटा अगर देखिए H पॉजिटिव यहीं रहता तो ब्लड की एसिडिक कंडीशन बढ़ जाती, यानी पीएच जो है कम होने लगता है H पॉजिटिव आयन बढ़ते. ऐसे केस में हीमोग्लोबिन ने क्या किया? H पॉजिटिव को अपने साथ कंबाइन कर लिया. तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन कैसे काम किया? एज अ बफर, बिकॉज इट डज नॉट अलाउ द चेंज इन pH. So hemoglobin here acted as buffer. Very very important point. स्टार पॉइंट बना के लिखिए. हीमोग्लोबिन acts as buffer. मैं यहाँ लिख देती हूँ acts as buffer. Very very important as it resists the change in pH. और कैसे वो किया? By combining with
H पॉजिटिव आयन। और जो आपके HCO3 नेगेटिव थे उसका क्या होगा, देखो बेटा, जो हमारे आरबीसी की मेम्ब्रेन है ना वो परमिएबल है एनायंस के, इट इज परमिएबल टू एनायंस। तो क्या होता है, ये रिएक्शन कहाँ होगा, दिस रिएक्शन विल अकर एट टिश्यूज, टिश्यू साइड पर हो रहा होगा क्योंकि वहां पर CO2 ज्यादा है, अंदर जाएगा। परमिबिलिटी ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन इज फॉर एनायंस। सो H पॉजिटिव तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो गया और ये HCO3 नेगेटिव प्लाज्मा में आ जाएगा। HCO3 नेगेटिव कहाँ आएगा, प्लाज्मा में आएगा। ब्लड वेसल को अभी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हम समझ सकें हो क्या रहा है। सो ये पूरा प्लाज्मा रीजन है। HCO3 नेगेटिव कम्स इनसाइड द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, ये यहाँ आएगा बिकॉज परमेबिलिटी ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन इज फॉर आयंस। यहाँ पे स्टार पॉइंट में लिख लो जल्दी जल्दी, आरबीसी मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू एनायंस। है ना, वेरी गुड। सो HCO3 नेगेटिव टिश्यू साइड पर जब ये रिएक्शन होता है वो प्लाज्मा में आ जाता है। जब बेटा ऐसा होगा, यहाँ पर कुछ एनायंस कैटायंस भी होंगे, Na पॉजिटिव वगैरह, वो कंबाइन कर सकते हैं, बट व्हेन HCO3 नेगेटिव इज कमिंग हेयर तो बैलेंस जो है आयन का अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी वो खराब नहीं होना चाहिए ना, उसी को मेंटेन करने के लिए equal amount of chloride ion will move or shift from plasma to the RBC। तो जब HCO3 नेगेटिव इधर आता है तो उतने ही क्या जाते हैं, क्लोराइड आयंस जाते हैं from the plasma to the RBC। So there is an influx of क्लोराइड आयन, है ना, टिश्यू साइट पर। इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, कि क्या हुआ, HCO3 नेगेटिव जो बना वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स प्लाज्मा और उतने ही क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी की तरफ शिफ्ट हुए टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द चार्ज। तो इसको बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्ग्स फिनोमेना, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये सब बेटा टिश्यू साइट पे होगा। और अगर आपने ध्यान दिया, इस रिएक्शन को मैंने रिवर्सिबल बनाया है। जब ये ब्लड पहुंचेगा एल्व्यूलर साइट पर तो रिएक्शन एल्व्यूलाई पर क्या होगा, PCO2 कम होगा, PO2 ज्यादा होगा, तो H पॉजिटिव आयन हीमोग्लोबिन को छोड़ देंगे, वापस आ जाएंगे। हीमोग्लोबिन का H पॉजिटिव का इफेक्ट हीमोग्लोबिन पे खत्म हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट वापस आ गई है। एंड HCO3 नेगेटिव विल कम बैक टू दी RBC एट दी एल्व्यूलर साइट और क्लोराइड आयन वापस अपनी जगह आ जाएंगे। रिएक्शन ऑपोजिट होगा और CO2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम दी RBC टू दी एल्व्यूलाई। आया समझ में आपको क्या हुआ? तो एल्व्यूलर साइट पर इट इज दी ऑपोजिट। अभी हम यहाँ पर एक माइंड मैप बना लेते हैं। एट टिश्यू साइट क्या हो रहा है और एल्व्यूलर साइट क्या हो रहा है। ठीक है, टिश्यू साइट पर CO2 प्लस वाटर, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। मैं एज HCl लिख रही हूं। कार्बोनिक एसिड ब्रेक्स इनटू H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, राइट, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब ये टिश्यू साइट पर हुआ, कहां पर, दिस इज अकरिंग इन दी RBC, इन RBCs। ठीक है, सो what else occur? H positive ions combines with
हीमोग्लोबिन, है ना। और HCO3 नेगेटिव का क्या होगा, एफ्लक्स होगा, बाहर निकलेंगे कहां से, आरबीसी से, कहां पर, वेरी गुड, प्लाज्मा में। आ गया आप लोगों को। देन क्लोराइड आयन का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा, कहां से, फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, ठीक है, फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी। क्लियर हुआ बेटा। ये हो रहा है टिश्यू की साइट पर, याद रखना जैसे मैंने आपको अभी समझाया, दिस इज एट टिश्यू साइट। नाउ लेट अस सी एल्व्यूलर साइट पे क्या होगा। एट एल्व्यूलर साइट यानी जैसे ही ब्लड एल्व्यूलाई लंग्स की तरफ पहुंचा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लेस है, तो रिएक्शन अकर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, HCO3 नेगेटिव विल कंबाइन विद H पॉजिटिव। उल्टा लिख दे रिएक्शन, फटाफट। कंबाइन किया, H2CO3 बना और फिर CO2 प्लस वाटर बन गया, सेम एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दिस CO2 diffuses into alveoli from blood and then out of body, right? आया, ब्लड से एल्व्यूलाई में आया और फिर बॉडी से बाहर चला गया। और क्या हुआ, तो HCO3 नेगेटिव कहां से आए थे बेटा, इनफ्लक्स हुआ किसका, HCO3 नेगेटिव का, कहां से, फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, है ना, तभी तो ये रिएक्शन ऑपोजिट जाएगा। और अगर ये वापस आ गया तो क्लोराइड आयन भी अपनी जगह वापस, यानी एफ्लक्स होगा किसका, क्लोराइड आयन का, फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा। ठीक है, यहां पे जो ये इनफ्लक्स हो रहा था बेटा, इसको क्या बोल रहे थे, ये जो इन्फ्लक्स हुआ था ना टिश्यू साइट पर क्लोराइड का प्लाज्मा से आरबीसी में, इसी को ही हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, यानी अपनी एक्चुअल पोजीशन से शिफ्ट हो गए वो प्लाज्मा से आरबीसी में। और यहां पर जब वो आरबीसी से वापस प्लाज्मा में आए तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट जो कहाँ होगा, एल्व्यूलर साइट पर। क्लोराइड शिफ्ट को आप हैम्बर्ग फिनोमेना भी कह सकते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आया है, फटाफट लिख लो। अब मुझे पता है कि आपसे जब भी कोई पूछेगा आप फटाफट बता दोगे कि कैसे बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रैवल करता है CO2। ठीक है बेटा, सो ये हमने रिएक्शन देखा, बोथ द डायरेक्शन में ये रिएक्शन होता है। HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये कहाँ पे होगा, टिश्यूज पर, जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई। पहली रिक्वायरमेंट यही है कि CO2 का प्रेशर हाई होना चाहिए। और वो किस लिए हाई है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, उसका प्रोडक्ट था ये। ठीक है, ये देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट भी कितना अच्छे से दिखाया हुआ है। देखो टिश्यू साइट पर
RBC में CO2 वाटर के साथ कंबाइन किया, H पॉजिटिव हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएंगे, HCO3 नेगेटिव विल मूव फ्रॉम RBC टू द प्लाज्मा और उतने ही क्लोराइड आयंस यहाँ आएंगे, तो इसको क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं। इसी का जस्ट ऑपोजिट कहाँ होगा? एल्व्यूलर साइड पर, जबकि ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है? टिश्यू साइड पर। क्लियर हुआ? सो टिश्यू से CO2 आया प्लाज्मा में और RBC में भी आया, फिर RBC में ये रिएक्शन हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, तो CO2 किस किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? डिसॉल्व्ड फॉर्म में 7%, कार्बोनिक बाइकार्बोनेट फॉर्म में 70% और आपका कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 20 to 25%। हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, आ गया पूरा आपको प्रोसेस समझ में कि कैसे हमारी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू रियली लाइक आवर वीडियो। You can join us offline at our centers at Vaishali and Indrapuram as well. The admissions for 9th to 12th are open. Enroll yourself fast. See you in the next video. Till then, goodbye. Stay happy.